Students, welcome in the sixth phase discussions from the same chapter. Is matter around us pure? In the last video we had undiscussed on one of the topic, that is heterogeneous mixtures, and today we are going to discuss on that topic, heterogeneous mixtures. Those mixtures in which the substance remains separate and one substance is spread throughout the other substance as small particles, droplets or bubbles. See, it is a heterogeneous mixtures, so it is not the talking about the one particular substances. There is two or more substances that we are talking, and here one of the substance which are remain separate, जो कि जिस सॉल्यूशन में जिस मिक्सचर में इसको मिलाया जा रहा है वहां पर एक सब्सटेंस के बारे में नहीं है, यहाँ पे दो तीन सब्सटेंस के बारे में, मिक्सअप के बारे में बताया जा रहा है. तो हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जब जिसमें दो से ज्यादा सब्सटेंस में यदि एक सब्सटेंस उस लिक्विड में घुल जाता है लेकिन दूसरा जो सब्सटेंस है वो पूरी तरह घुल नहीं पाता है, और जो पूरी तरह नहीं घुल पाता है वो उसके जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स है वो स्मॉल पार्टिकल्स या तो ड्रॉपलेट्स या बबल्स, ये सारे उस लिक्विड में तैरते रहते हैं, और इट शोज दैट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड. That's why in this bracket I have written here, it does not have uniform composition throughout mass. यानी कि जो भी लिक्विड के मास है, जो भी लिक्विड है जिसमें कि टू और मोर सब्सटेंस को घोला जा रहा है वो पूरी तरह से घुल नहीं पाता है. जिसमें कि एक सब्सटेंस पूरी तरह घुल नहीं पाता है एंड और वो सब्सटेंस स्मॉल पार्टिकल्स जो पानी में स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में, या वो सब्सटेंस स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में या ड्रॉपलेट्स या बबल्स के रूप में वो तैरते रहता है. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड इट्स अ क्वालिटी ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो जिसके कारण से यहाँ हम लोग कह सकते हैं इट इज नॉट अ uniform compositions like homogeneous mixture, for it has visible boundaries of separations. हम लोग इसको इस टाइप के मिक्सचर को little far different distance we can see that what are the substances that are mixed in that particular form, in that particular mixture. तो हम लोग बोल सकते हैं उस मिक्सचर में क्या क्या चीज मिला हुआ है, तो उसको दूर से ही हम लोग पता कर सकते हैं थ्रू द आईज दैट वी कैन सी दैट व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट इन दैट मिक्सचर. सो इन एन एग्जाम्पल, so here are few example that I have written. कुछ example मैंने यहाँ पे लिखा हूँ. sand and salt mixture. see, sand and salt, नमक और बालू का मिक्सचर. तो नमक और बालू का मिक्सचर क्या है? that through the naked eyes that we can easily can separate. so it's an example of heterogeneous mixtures. now about the chalk and water mixtures. Chalk and water mixtures also, it is also not mixed uniformly throughout masses. तो that's why it has a visible boundaries. इसके भी जहां से ये मिक्स हो रहा है, जबकि ये पूरी तरह मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन वो लग रहा है कि वाटर और चॉक का जो मिक्सर मिक्स हो रहा है, डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स
डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट chalk are not dissolved. That's why we can see their boundaries of separations. After a while, if we keep the container of chalk and water mixture undisturbed, then we can find their boundaries of separations. So we can say that this chalk and water mixture, it is a heterogeneous mixture. Now the suspension of solid in liquid. So we can say that the suspension of solid and liquid, chalk and water mixture is the example of suspension of solid in liquid, which is heterogeneous mixture. ये chalk and water जिसमें कि सस्पेंशन ऑफ सॉलिड, यानी कि चॉक के जो पार्टिकल्स है वो घुल नहीं पाते, बहुत सारे पार्टिकल्स है जो घुल नहीं पाते हैं और वो क्या करते हैं, पानी में तैरते रहते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज कम्स अंडर द हेटेरोजेनियस मिक्सचर. नाउ सेकंड पॉइंट, two or more immiscible liquids are also comes under the heterogeneous mixture. Immiscible का मतलब क्या होता है? Immiscible, this immiscibles means जो कि लिक्विड में पूरी तरह नहीं लिक्विड में मिलते ही नहीं है. जैसे इमिसिबल सब्सटेंस, जैसे पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, एनी टाइप ऑफ ऑयल दैट कैन नॉट बी मिक्स विथ वाटर. तो हम लोग देखते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, जैसे कुकिंग ऑयल को अगर पानी में मिला दें तो वो मिक्स नहीं हो सकता है, इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड इमिसिबल्स लिक्विड, इसीलिए उसको इमिसिबल लिक्विड बोलता है. तो दैट्स व्हाई वी हैव एन एग्जांपल इमिसिबल लिक्विड, दैट इज पेट्रोल. पेट्रोल एंड वाटर, it cannot mix together, it cannot mixed, that's why it is immiscible substance, petrol. Therefore these qualities also comes under the heterogeneous mixture. तो इस प्रकार के क्वालिटीज, इस प्रकार के कैरेक्टर्स हेटेरोजेनस मिक्सचर के उदाहरण है. नाउ लास्ट वन, मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेटेरोजेनियस, only solutions and alloy are homogeneous mixtures. So through this we have concluded that most of the mixtures are heterogeneous. यानी कि ये एक पूरी तरह से हम लोग को ये मालूम चल गया कि ज्यादातर जो भी मिक्सचर है वो हेटेरोजेनियस है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ओनली सॉल्यूशंस और एलॉय, ये दो एक ऐसे हैं जो कि होमोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं. एज आई हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो अबाउट द सॉल्यूशन एज वेल एज एलॉय. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द properties of mixture. As we have discussed the two mixtures, homogeneous mixture and heterogeneous mixtures. So we have the properties also, that what we have concluded so far. Properties of mixture. See, first properties is telling about a mixture can be separated into its constituent by physical process. It means that हम लोग किसी भी, either it is homogeneous mixture or a heterogeneous mixture, तो उसको हम लोग जो उस मिक्सचर में क्या क्या चीज, टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड हुए हैं, तो उस टू और मोर सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को एक दूसरे सब्सटेंस को के साथ? फिजिकली प्रोसेस. वो फिजिकली प्रोसेस क्या है? देयर आर द सेवरल फिजिकल प्रोसेस, बट आई हैव रिटन हियर सम ऑफ द एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आपको समझाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल लिखा गया है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एटसेट्रा. फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, मैग्नेट, these are the physical process.
इसके द्वारा हम लोग वो मिक्सचर को हम लोग डिफरेंट सब्सटेंस को हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन में हम लोग देयर आर फिल्ट्रेशन, जैसे कुछ सब्सटेंस है जिसमें कि फिल्टर के द्वारा हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। इवापोरेशन, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर यानी कि दैट मीन्स सॉल्टी वाटर को अगर हम लोग गर्म कर दें तो उसके वो पानी क्या हो जाएगा, भाप बनकर चले जाएगा और बच जाएगा क्या, सॉल्ट। तो इन अ पाउडरी फॉर्म, यानी कि पाउडर फॉर्म में वो बच जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट थ्रू दिस फिजिकल प्रोसेस। मैग्नेट, जैसे फॉर इन एग्जांपल iron nail and sand, iron nail and sand mixed with that is the mixture of iron nail and sand। आयरन नेल और सैंड का मिक्सचर, उसको हम लोग मैग्नेट के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई these are the physical process। सेकेंड वन, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। किसी भी मिक्सचर में क्या क्या चीज मिला हुआ है, वो सारे चीज को वो उस प्रॉपर्टीज को वो शो अप कर सकता है, वो दिखाता है किसी भी मिक्सचर में। तो इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। जैसे पानी में नमक है, तो भाप बनकर जब उड़ जाएगा तो पानी था और नमक लिविंग बिहाइंड सॉल्ट, तो वो पाउडरी सब्सटेंस में वो पानी जब भाप बनकर उड़ जाएगा तो सॉल्ट पाउडरी फॉर्म में, यानी कि पाउडर फॉर्म में सॉल्ट रह जाएगा। तो वो क्या हो गया उसका, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, क्या क्या चीज मिला हुआ है। तो थर्ड वन, एनर्जी इज यूजुअली नीदर गिव आउट नॉर ऑब्जर्व इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। कोई भी मिक्सचर जब हम लोग बनाते हैं, किसी भी चीज का जो मिक्सचर हो, तो उसमें एनर्जी यूजुअली प्रायर रूप से उसमें से एनर्जी ना वो निकालता है और ना एनर्जी ऑब्जर्व करता है। ये दोनों चीज किसी भी मिक्सचर में ये चीज नहीं होता है, ना वो एनर्जी निकालता है या देता है, ना एनर्जी वो ऑब्जर्व करता है। तो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर नाइदर गिवन आउट द एनर्जी नॉर ऑब्जर्व द एनर्जी। सो रिमेंबर दिस। Next one, a mixer does not have a fixed melting point, boiling point, etc. यानी कि किसी भी मिक्सर का एकदम एक्यूरेट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट और ना बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे आइस का एक एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में आइस चेंज इनटू वाटर in liquid form as well as in that steam form also. So that's why in boiling water can be boiled in 100 degree Celsius. So that's why, और 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस में आइस क्या होता है, मेल्ट होता, आइस बनता है, पानी। तो उसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग का जो एक डिफिनाइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का एंड एज वेल एज आइस का, तो उस प्रकार का मिक्सचर में नहीं होता है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग देयर डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट say or we cannot predict that in that temperature particularly that mixture will get boil or melt, नहीं बोल सकते। तो इसीलिए अगर हम लोग if we take an example of बटर का अगर एग्जांपल ले और गुड़ का ले ले, तो बटर जैसे हम लोग रखते हैं तो वो लेटेंट हीट जब ऑब्जर्व कर लेता तो इट बिगिन टू मेल्ट, वो मेल्ट होना, गलना शुरू होता है।
लेकिन जब वो, और वेयर एज गुड़ जो होता है इट टेक अ लिटिल मोर टाइम टू मेल्ट। जब उसका लेटल हीट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो जिसके कारण से वो क्या होगा कि उसको ज्यादा हीट चाहिए उसको मेल्ट होने में। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट बोथ हैविंग द सेम टाइप ऑफ melting points. That's why it is depend on the constituent of substance. तो मिक्सर में कभी भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस whatever I have discussed today. See you in the next video. Till then, goodbye and thank you for watching.